Good morning to all. Today we talk about Young theorem. Young theorem. The statement is given that if f of x y is a real valued function on domain D subset of R2 for and any point AB in domain of in domain D such that fx and fy are differentiable at AB, then fxy at AB is equal to fy x AB at AB. तो थ्योरम इज क्लियर। यदि एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन हो डोमेन डी पर डी सबसेट ऑफ R2, तो कोई पॉइंट ए बी है यदि डोमेन डी में इस प्रकार है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों इस पर डिफरेंशिबल हो, तब एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू वाई एक्स ए बी होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो दिस प्रूफ इज़ वेरी सिंपल एंड इजी, इट्स लाइक सॉल्व थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिबल at AB, then clearly fx and fy are exist on neighborhood of AB। ओके, तो एफ एक्स वाई दोनों अवकलनीय हैं ए बी पर, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होंगे, नेबरहुड ऑफ ए बी पर क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट हैं, देन क्लियरली एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई एंड एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर एग्जिस्ट एट ए बी also। okay, now suppose, अब ठीक है, now suppose a plus h and b plus h is any point in neighborhood of AB, then we can write a function of hh is equal to f of a plus h b plus h minus f of a b plus h minus f of a plus h b
and minus of f of AB. Here is plus sign here. We can write this because a plus h is a any point in neighborhood of AB. Then for a plus h we take a function phi f h is like in this term. Now एंड ये टू वेरिएबल फंक्शन है, जो फाई एच एच का टू वेरिएबल फंक्शन है, तो उसको क्या वन वेरिएबल फंक्शन चेंज करने के लिए एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं. वो फंक्शन क्या होगा, जी वाई. मैं लास्ट टाइम बताया था जी वाई, इसके जी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जी वाई कैसा होगा, इस वाई मतलब एक्स इज़ अ वेरिएशन होगा यहाँ पर. तो एफ ऑफ ए प्लस एच वाई इज़ कॉन्स्टेंट एंड माइनस एफ ऑफ ए वाई. देन फ्रॉम एंड देन क्लियरली देन when y is equal to b, f of gb is equal to f of, is equation number 1. Equation number 2, f of a plus h b minus f of ab. And when y is equal to b plus h, then gb plus h is equal to f of a plus h b plus h minus f of a b plus h. The question number 3rd, this value is 4th. From first, third and fourth. So from first, third, fourth we can say phi of h is equal to f of a plus h b plus h minus a f of b f of a b plus h. This value here g b plus h. माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो माइनस कॉमन आया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी. दिस वैल्यू हियर क्वेश्चन नंबर 3rd, दिस वैल्यू हियर जी बी. तो क्या किया हमने, इसका मान और इसका मान क्या है, जी बी प्लस एच है. इसका मान क्या है, जी बी है. पुटअप कर दिया है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई है. तो क्वेश्चन नंबर क्या आ गई हमारे पास, इस फिफ्थ. ओके. अब हम क्या जानते हैं, सिंस एफ वाई इज एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए बी. ओके, इन नेबरहुड ऑफ ए बी, बिकॉज हियर इज नेबरहुड एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ exist in neighborhood of AB. Okay, exist in neighborhood of AB. So fy is exist in neighborhood of AB, then clearly g is a function of f और fy exist करता है, तो gy भी क्या करेगा, exist करेगा. तो कह सकते हैं हम then clearly g is differentiable in what is the value here, b to b plus h. b to b plus h में क्या होगा, ये डिफरेंशियबल होगा. ओके, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम we can say gb plus h minus gb divided by h is equal to g dash c. What is the differentiable? Is it fy exists? That means g is differentiable with respect to y. Then clearly we take here del upon del y, and here g dash c. तो dash तो ये लग गया, del upon del y, g हो गया. अब what is the c? c is a value here b plus theta h, where b plus theta h belongs to b plus h whenever theta lie between 0 to 1. Okay, so this value defined here. Okay, and clearly y h यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आएगा, then clearly g b plus h minus gb is equal to h into del upon del y and g b plus theta h, where theta lie between 0 to 1. Okay, this value here is less than not is a equal to sign here. Okay,
And what is the value of gy? Since gy from 2, what is the from 2? What is the value 2? From 2, 2 is a gy is equal to f of a plus h, y minus f of a y. In place of y, the value here b plus theta h. Then clearly here gb plus h, okay, no, then again gb plus h minus gb. So this equation number here. Then from fifth we have phi of hh is value here. What is the phi of hh? Phi of hh is gb plus h minus gb, and gb plus h minus gb is equal to h del upon del y and gb plus theta h. Okay, where theta lie between 0 to 1. ओके, फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है, फ्रॉम फिफ्थ हमने लिखा ये. देन अगेन फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज द जी वाई? द जी वाई हेयर फ्रॉम वाई, जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई. ओके, तो ये तो क्लियर हम जानते हैं. जी फ्रॉम वन में क्या दिया गया है ये कि जी वाई इक्वल टू समथिंग है. तो व्हाट इज द जी? इन प्लेस ऑफ वाई इज बी प्लस थीटा. देन क्लियरली ये एच डेल अपॉन डेल वाई पुटअप कर दो. जी वाई की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ ए प्लस एच वाई. व्हाट इज द वाई? इज बी प्लस थीटा एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस थीटा एच. ओके, एंड डेल वाई अप्लाई हेयर. देन क्लियरली एच, तो वैल्यू कितनी आएगी? एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस थीटा एच, दिस वैल्यू एफ वाई हेयर. एंड गिवन दैट एफ वाई इज डिफरेंशिबल. हमें दिया क्या गया है? इज गिवन दैट एफ वाई इज differentiable. Then by the definition of differentiability, limit s tends to 0 f y a plus h b plus theta h a plus h b plus theta h minus f y a b minus of h f, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस के इन के प्लेस में क्या लिख रहा है? थीटा एच ले रहे हैं. ठीक है ना, याद रखना. हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के. अब चूँकि यहाँ पर एफ डिफरेंशिबल है तो यहाँ पर एफ होता है. चूँकि एफ वाई डिफरेंशिबल है तो यहाँ पे एफ वाई होगा. इन के प्लेस में क्या ले रहे हैं हम? थीटा एच. थीटा यहाँ पे वैल्यू क्या है? थीटा एच वैल्यूज है 0 to 1. देन हियर ए प्लस एच एंड बी प्लस थीटा माइनस एफ वाई ए वाई. अब यहाँ क्या होता है? एफ एक्स होता है. एफ एक्स होता है तो यहाँ चूँकि एफ वाई ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ वाई ऑलरेडी है, उसमें एक्स ऑपरेट हुआ तो एक्स वाई आ जाएगा. और यहाँ क्या आएगा? ए बी माइनस ऑफ के एन वाई एफ वाई होता है और वाई तो एफ वाई ऑलरेडी है तो यहाँ क्या आएगा? एफ वाई वाई. और ये भी क्या आ गया? ए बी. इतनी आएगा. और यहाँ पे कितना आएगा? थीटा के प्लेस में कितना ले रहे हैं हम? थीटा एच ले रहे हैं. तो यहाँ पे कितना आएगा? थीटा और ये एच एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. व्हाट इज अ के हेयर? थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. थीटा स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए. सेकेंड थिंग क्या आता है? ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास. सेकेंड वैल्यू क्या होती है? एंड. क्योंकि एफ वाई डिफरेंशिबल है तो एक डिफरेंशन और होगी. वो डिफरेंशन क्या होगी? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई ए बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए बी इज
divide by theta h is equal to this value here fy, because fy is differentiable with respect to y. Then clearly here fy a b plus theta and minus f of a b. तो fy तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि fy की बात कर रहे हैं, वेरिएशन b में है, तो एफ वाई वाई आ जाएगा इस वैल्यू हियर ए बी हियर. ओके, इक्वेशन नंबर ये हो गया एक तो. ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, एंड नाउ we take suppose now is limit s tends to 0, we does not tend to, then now we can write so we can write this term in this form is phi 1 h h is equal to fy a plus h b plus theta h minus fy ab minus h of xy ab and minus theta h fyy ab divide by root over h square plus theta square h. क्लियर है, क्योंकि बिकॉज इफ़ इट एच टेंस टू जीरो देन दिस वैल्यू इज जीरो, इफ़ डज नॉट टेंस टू जीरो तो ये वैल्यू जीरो तो होगी नहीं. हमने बोला कि जो की फंक्शन है ये फंक्शन है. क्लियर है, अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट अप करते हो तो दिस फाइव वन एच एच इज जीरो. फाइव वन एच एच की वैल्यू कितना जीरो हो जाएगी. तो इसको क्या माना, इस फोर फंक्शन को क्या माना हमने, फाइव वन एच एच मान लिया है. ठीक है, एंड दिस दैट मीन्स क्लियरली, एंड दिस वैल्यू हियर दिस फंक्शन इज फाइव टू एच एच is equal to is fy a b plus theta h minus fy a b divide by theta h minus fy y a b. Okay, then also we can write what this value here h square, the h square is also always positive. ठीक है, तो h स्क्वायर कॉमन निकालो, इसका रूट लगेगा तो मॉड ऑफ h के लिखते हैं, क्योंकि h का वेरिएशन क्या, हम a प्लस एच बी प्लस एच की बात कर रहे हैं, तो h ऑलवेज पॉजिटिव है यहाँ पर हमारे पास. तो इसको यहाँ से h कॉमन निकाल के हम मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. देन क्लियरली वी हैव वैल्यू हेयर, व्हाट इज़ द वैल्यू, द एफ वाई ए प्लस एच b plus theta h माइनस एफ वाई ए बी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, मॉड ऑफ h रूट ओवर वन प्लस थीटा स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विथ फाइव वन एच एच, एंड दिस वैल्यू इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो आएगा प्लस एच एफ एक्स वाई ए बी एंड प्लस थीटा एच एफ वाई वाई ए बी. ओके, इतना ही आएगा. एंड यहाँ भी सॉर्ट आउट कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, तो एलसीएम ले लो तो वैल्यू कितनी आएगी, थीटा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो क्लियर है, एच तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ भी लिख दिया हम एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन क्लियर से वी टेक अ मॉड ऑफ एच, देन मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो कितना आएगा देखो, एफ वाई ए बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए बी इसको यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो इससे पहले मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ. यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा. तो क्या होगा, दिस वैल्यू हेयर थीटा एच एंड फाइव टू एच एच, एंड इस तरफ गया तो प्लस थीटा एच एंड एफ वाई वाई ए बी, यही आएगा. ठीक है, तो इसको नाम देते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर, दिस वैल्यू हियर व्हाट इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन दिस, एंड वैल्यू पुटअप किया. ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 6 नंबर, इसको बोलते हैं हम 7 नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 8.
फ्रॉम 6, 7, 8। देखो यहाँ पे क्या है, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच। तो यहाँ से क्या करोगे, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच का मान निकाल लोगे, किससे, क्वेश्चन नंबर 7 से। और एफ वाई ए प्लस और एफ वाई ए बी प्लस थीटा का मान कहाँ से निकाल लोगे, 8 नंबर से निकाल लोगे, है ना। देखते हैं हम, फ्रॉम what is the question number is 6, 7, 8 from 6, 7 and 8 we have, क्या रखेगा हम, क्या लिखा है, फाई ऑफ एच एच। यहाँ क्या लिखा है, फाई ऑफ एच एच इक्वल टू समथिंग है। तो फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू एच, फर्स्ट एच फाई ऑफ ए प्लस एच बी प्लस थीटा, इसका मान क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 से निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 7 से मान निकालें हम, तो मान क्या आएगा, मॉड ऑफ एच रूट ओवर 1 माइनस थीटा फाई 1 एच एच, मॉड ऑफ एच रूट ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर फाई 1 एच एच, फाई 1 एच एच। और क्या आएगा, एच एक्स वाई ए बी प्लस थीटा एच वाई वाई ए बी, एच एक्स वाई ए बी एंड प्लस थीटा एच एफ वाई वाई ए बी। और क्या जाएगा, ये वैल्यू सब्सिट्यूट होगी, तो क्या आएगा, प्लस एफ वाई ए बी, प्लस एफ वाई ए बी। ओके, अब क्या देखें इसमें, अब हमारी क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, माइनस एफ वाई ए प्लस बी प्लस थीटा। एफ वाई ए बी प्लस थीटा का मान क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से निकाल लें। यहाँ से देखो एफ वाई ए बी प्लस थीटा दिख रहा है, ये यहाँ रख लो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये मान निकल आएगा एफ वाई ए बी प्लस थीटा का मान निकलेगा। तो माइनस, वैल्यू पुटअप करते हैं, पहले क्या, थीटा एच फाई 2 एच एच, थीटा एच फाई 2 एच एच, ओके, एंड माइनस थीटा एच एफ वाई ए बी, माइनस थीटा एच एफ वाई वाई ए बी, एफ वाई ए बी। ये सब शिफ्ट होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो एफ वाई ए बी इतनी आएगा। एफ वाई ए बी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, बचा पोर्शन इतना, तो इतना पोर्शन बचा हमारे पास, तो इसको नोट डाउन कर दें। देन फाई एच एच इज इक्वल टू, एच कॉमन निकाल लो अंदर, तो एच कॉमन निकाले तो क्या आएगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर फाई 1 एच एच एंड प्लस एफ एक्स वाई ए बी एंड माइनस थीटा फाई 2 एच एच। ये बचेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, द व्हाट इज द फाई ऑफ एच एच, द फाई ऑफ एच एच is here f of a plus h b plus h minus f of a b plus h minus f of a plus h b plus f of a b is equal to h square and root over 1 plus theta square and phi 1 h h and plus fxy of AB and minus theta phi 2 hh। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी टेक लिमिट, टेकिंग लिमिट s टेंस टू 0, ये अप्लाई s टेंस टू 0, देन ओके, तो लिमिट s टेंस टू 0, देन
phi 1 HH equal to 0 and phi 2 HH equal to 0, because it is given here this value here, the phi 1 HH, this value here phi 1 HH, this value equal to 0 and this value here phi 2 HH. इस तरफ ले आओ इसको, तो phi 2 HH equal to also 0. If we take limit s tends to 0, both are 0, then clearly we take here limit, तो limit s tends to 0, इसको इधर कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ यहाँ पे वाई एक्स है ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच बी प्लस एच माइनस f ऑफ a b प्लस एच एंड माइनस f ऑफ a प्लस एच b प्लस f ऑफ ए बी डिवाइड बाय 1 अपॉन एच यहाँ कर दें और 1 बाय एच इस पूरे के अंदर कर दें, इज इक्वल टू दिस वैल्यू यार एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो आएगा नहीं, एच स्क्वायर तो सब शिफ्ट हो गया है, तो ये एच ये है, बचा क्या अंदर यहाँ पर रूट ओवर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पर एफ एक्स वाई ए बी बचा. ओके, बिकॉज एच टेंड टू 0, दी phi 1 HH एंड phi 2 HH बोथ आर 0, ये 0 बचा क्या एफ ऑफ एक्स वाई एट ए बी, ये वैल्यू क्या होगी जी, ये वैल्यू बचेगी, बाकी 0 हो जाएगी. ठीक है, अब इस पर अप्लाई कर दो. पहले क्या है, पहले हम एक्स के लिए सॉल्व कर लें, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, इसको अलग अलग कर लो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाय आल्सो एच. This value here is equal to f of x y a b. Then again this value here, limit s tends to 0, this value here 1 by this, all values limit s tends to 0, limit s tends to 0 apply here, so apply here, that means here this value here 1 by h, that means this overall values here limit s tends to 0, then I also apply here limit s tends to 0 here, limit s tends to 0 here and limit s tends to 0 here. I think so it's not a problem here. तो क्लियर है, तो दिस वैल्यू हियर एफ ऑफ, बिकॉज वेरिएशन एक्स में हो रहा तो एफ एक्स वेरिएशन ए प्लस एच, और यहाँ ए है, वाई तो फिक्स है, तो आ जाएगा एफ एक्स ए बी प्लस एच हो जाएगा ये, और ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस, यहाँ वेरिएशन अगेन एक्स में है देखो, तो क्या आएगा एफ एक्स और ये क्या जाएगा ए बी आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ए बी. तो वैल्यू अगेन क्या आ गई यहाँ पर एफ एक्स, अब वेरिएशन देखो यहाँ पे वाई में आ रहा है, ये तो एक्स तो फिक्स है, एक्स वेरिएशन कंपोनेंट ऑफ एक्स क्या है फिक्स है, यहाँ पर वाई जो है कंपोनेंट है वो यहाँ वेरिएट कर रहा है, तो वो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये डेफिनेशन जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ये, तो वैल्यू की जाएगी लिमिट एस टेंड्स टू 0 अगेन अप्लाई हुआ, तो वैल्यू की जाएगी यहाँ पर एफ वाई एक्स एट ए बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ए बी. ये कैसे लिखा है, बाय द डिफरेंशियबिलिटी. ओके, तो हैंस प्रूव्ड. आई थिंक सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आता तो वापस मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा. क्लियर, ये कैसे लिखा हमने, बाय द डिफरेंशियबिलिटी, ये वैल्यूज इसके बराबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये वैल्यू इसके बराबर बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी. आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लास में इसको दोबारा पूछ लें. दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम, यंग थ्योरम. ओके, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय.